Hello friends. This is a second lecture on matrices, and first of all we'll decide the basic agenda of this lecture. In this lecture we are going to practice on matrix multiplication, addition, subtraction, scalar multiplication. Okay, we'll practice on these things. One thing guys, okay, yesterday in the previous lecture probably I forgot to tell you one thing, that division of matrices is not possible. That is, a matrix divided by a matrix, it is not possible. You can multiply two matrices, you can add them, you can subtract them, but you can't divide a matrix by a matrix. Okay, remember, this operation is not allowed. Okay, then we will discuss some properties of matrix addition, properties of matrix multiplication, and properties of transpose. And after completing those things, we'll discuss the concept of minors and cofactors, okay, which we actually require in our, you can say, 12th standard portion of matrices. Okay, so these are the things to be discussed for today. Fine. So let's begin with matrix multiplication. Yes. So let's discuss these problems of matrix multiplication first. Okay, the lecture 1 had stopped with one example I had given of matrix multiplication. Okay, now we'll discuss this one. Guys, the first and foremost thing, okay, let's check whether the multiplication is possible or not. The order of this matrix is 2 by 2, that is 2 rows and 2 columns. So the order is 2 cross 2, and the order of this is also 2 cross 2, 2 cross 2. Guys, to verify whether multiplication between these two matrices is possible or not, we have to confirm that the number of columns in the first must be equal to number of rows in the second. I'll repeat, number of columns in the first must be equal to number of rows in the second. This is row, this is column. So number of columns in the first must be equal to number of rows in the second. If this is equal, then the matrix multiplication is possible. And the order of the result is going to be this. This is going to be the order of the result. So this is going to be the order of the answer, 2 by 2. Okay, so your answer is going to be 2 by 2 order. Matrix multiplication is possible here. How to multiply now? See guys, to multiply, okay, for example, as I told you, the order is 2 by 2. Okay, this is the order, 1, 2, 3, 4, 2 by 2. Okay, 4 elements will be there in this. Okay, 2 rows and 2 columns. Guys, this element, see the position of this element. This is the first row and first column element. First row, first column. So this we will obtain by multiplying first row with first column. As the name suggests, first row, first column ना, इसमें से first row और first column को multiply करके ये element आने वाला है. कैसे आएगा? ओके, ये देखो, ये इसको मल्टीप्लाई होगा और ये इसको मल्टीप्लाई होगा. 3 into 2 which is 6 plus minus 1 into 4 which is minus 4. I'll repeat. Okay, 3 into 2 plus minus 1 into 4. Okay, so this is the first element guys. तो बहुत लोगों को लगता है कि ये इसको मल्टीप्लाई करके 6 लिखते हैं, फिर ये इसको अलग लिखते हैं. अलग नहीं है, वो सिंगल एलिमेंट है. याद रखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट मिलता है रिजल्ट का. ओके, गेटिंग द पॉइंट. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट. ओके, नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना है हमको. ये पोजीशन देखो कौन सा है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है. तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आपको ये एलिमेंट मिलेगा. पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो. 3 into 2 which is 6 plus minus 1 into 1 which is minus 1. Okay, then now this position second row first column, तो ये second row first column के साथ multiply करो, second row first column. Okay, 2 into 2 which is 4 plus 4 into 4 which is 16. Okay, and finally ये कौन सा एलिमेंट है, second row second column का, तो यहाँ का second row second column के साथ multiply करो. 2 into 2 4 plus 4 into 1 4. So your final result should be 6 minus 4 which is 2, 6 minus 1 which is 5, this is 16 plus 4 20 and 4 plus 4 which is 8. So this is the result of it. See the second problem of my, I hope you understood this. Okay, let's go on this next problem. Okay, you can check it out. यहाँ पे order same था. Okay, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है. पहले के कॉलम्स दूसरे के रो के साथ मैच होने चाहिए. अब मेरे को बताओ इसमें, ओके, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस
3 क्रॉस 2, 3 रो है 2 कॉलम है, सो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 पहले वाले का, और दूसरे वाले का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। तो गाइस ओके आप देख सकते हो ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना नहीं चाहिए, ये कॉलम्स इन द फर्स्ट रोज इन द सेकंड सेम होने चाहिए, सेम है इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आंसर क्या है, आंसर का ऑर्डर ये होगा 3 क्रॉस 2, याद रखो ये आंसर का ऑर्डर होगा और ये सेम होना चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके सो 3/2 आंसर का ऑर्डर होने वाला है, 3 रो और 2 कॉलम, सो आंसर का ऑर्डर जो है वो ऐसा होने वाला है, 3 रो 2 कॉलम, सी दिस ऑफ दिस फॉर्म। ओके अब ये मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, ये एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपको ऑब्टेन होगा ऐसे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 प्लस ये 1 into 2 प्लस 3 into -2 is -6। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ओके 3 plus 12, 3 plus 12 कैसे, 1 into 3 3 plus 3 into 4 12, ओके आ गया। फिर ये कौन सा पोजीशन है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आपको ये एलिमेंट मिलेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 10 plus -2 into -2 is +4। Okay, now second row second column 5 into 3 15 plus -2 into 4 is -8। Okay, ये पोजीशन कौन सा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 2 6 plus 4 into -2 is -8। Okay, and third row second column, ये third row second column, okay 3 into 3 that is 9 plus 4 into 4 that is 16। So your final result should be 2 minus 6 which is -4, 3 plus 12 which is 15, 10 plus 4 which is 14, 15 minus 8 which is 7, 6 minus 8 which is -2, and 9 plus 16 is equal to 25, and this is your final result of the product. I hope you have understood these two sums of matrix multiplication. So it is not necessary that the order of the two matrices must be same to multiply them. For addition and subtraction, okay, order must be same. Okay, here what should be same? Number of columns in the first matrix is equal to number of rows in the second matrix. Some more basic examples we will see here for addition, scalar multiplication. Okay, the first example is normal multiplication of two matrices. Guys, this matrix into this matrix, we have to find the result. So first of all, what we have to check whether they can be multiplied or not. Guys, जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 रो है और 3 कॉलम है, तो उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम्स। सबसे पहली बात गाइस, ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम होना जरूरी है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड, वो इक्वल है क्या, नहीं, इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, रिमेंबर माय पॉइंट। ओके सो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप करना चाहो, अगर ट्राई करो, तो एक्चुअली ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, सो दिस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, रिमेंबर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो मैंने जैसे कहा ऑर्डर सेम नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ऑर्डर सेम नहीं तो हमेशा मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने के लिए जरूरी बात है कॉलम्स इन द फर्स्ट इक्वल टू रोज इन द सेकंड। अब एक सिंपल सा सम है गाइस, एक मैट्रिक्स दिया है प्लस 4 इनटू अदर मैट्रिक्स। स्टूडेंट ये जो 4 है ये अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले इसको स्केलर कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लाई टू अ मैट्रिक्स, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। सो ये मैट्रिक्स तो वैसे ही रहेगा, ओके 3 2 -1 4 2 3 प्लस 4 अंदर मल्टीप्लाई करना है सबको, मैट्रिक्स में सबको मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो ये होगा 4 - 8 16 12 8 8 12 8 8, ओके, और उनको ऐड करना है। अब दो मैट्रिसेस को ऐड करने का रूल क्या है, सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए जो है यहाँ पे, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जैसे ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा 3 + 4 दैट इज 7, 2 - 8 व्हिच इज -6 -1 + 16 which is 15, 4 + 12 which is 16, 2 + 8 which is 10, and 3 + 8 which is 11. So your final result is 7 - 6 15 16 10 11. This is how you perform the addition and scalar multiplication here. Now guys, here आपको दिया है A is some matrix and find 3A + 2I. आप बोलोगे सर I कहां दिया है, I देने की जरूरत नहीं है, I जो है वो सम के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग अज्यूम करते हैं।
आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। याद होगा आपको, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। अब वो क्या लेना है, ओके, कौन सा लेना है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? गाइस यहाँ पे ए जो है वो 3x3 है, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो आई भी लेना है आपको I3, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 जो होता है ये। सबसे पहले लिखता हूं मैं 3 into A 2 7 3 minus 3 4 1 3 2 5 plus 2 times 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप लेक्चर 1 मेरा मैट्रिसेस का देख लो, आपको पता चल जाएगा ओके कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या होता है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ओके, सो अब क्या करना है, ये 3 इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 2 इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर, और दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। ओके, सो 3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, जस्ट चेक इट आउट। 3 मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 7 21, 3 3 9, 3 into -3 -9, 3 into 4 which is 12, 3 into 1 which is 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15। 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, 2 1 1 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारे तो 0 ही है। और अब इन दोनों को ऐड करके जो भी रिजल्ट होगा यू कैन राइट द फाइनल आंसर। आई डोंट थिंक दिस इज डिफिकल्ट नाउ टू ऐड देम। ओके, करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स एक दूसरे को ऐड कर दो। 6 plus 2 that is 8, 21 plus 0, 9 plus 0, -9 plus 0, 12 plus 2 14, 3 plus 0, 9 plus 0, 6 plus 0, 15 plus 2 17। that is the final result of it. Okay, just verify it once। अगर जल्दबाजी में कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ हो गया होगा तो एक बार वेरीफाई कर दो, लेकिन probably it is right। Okay, go for the next one। if a is equal to 1 minus 2 3, b is equal to 4 2 1 2, find 3a minus b। फाइंड करना है 3a minus b, मतलब a को 3 से मल्टीप्लाई करना है और b वैसे ही रखना है, सबट्रैक्ट करना है दोनों को। सो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करो इसको। सो मैं डायरेक्टली मैट्रिक्स लिख देता हूं गाइस, 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। चलो 3 into 2 which is 6, 3 into 1 which is 3, 3 into -2 -6, 3 into 3 9 minus b मैट्रिक्स वैसे ही रखना है 4 2 1 2, सबट्रैक्ट देम। 6 minus 4 2, 3 minus 2 1, -6 minus 1 -7, 9 minus 2 which is 7। that is your final result। so this is the way you perform multiplication, addition, subtraction, scalar multiplication of matrices। okay, moving on further with the properties of you can say the algebra, the operations on matrices। so here first let's check equality of matrices। students, matrices equal कब होते हैं? सबसे पहले मैट्रिसेस इक्वल होने की जरूरी कंडीशन ये है कि उनका ऑर्डर सेम चाहिए। अगर ऑर्डर ही अलग है तो वो मैट्रिसेस कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। रिमेंबर दिस पार्ट। और जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे अब इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, 2 रो 2 कॉलम है। इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, 2 रोज 2 कॉलम्स है। तो गाइस ये एलिमेंट आपको मैच करना है इसके साथ, सेम है। ये एलिमेंट आपको मैच करना है इसके साथ, सेम है। ओके, अब ये एलिमेंट मैच करना है इसके साथ। सो गाइस ए का वैल्यू जो है वो 7 होना चाहिए, ए का वैल्यू जो है 7 होना चाहिए। और ये जो वैल्यू ये मैच करना है आपको इसके साथ। सो बी का वैल्यू जो है 2 होना चाहिए, बी का वैल्यू जो है 2 होना चाहिए। सो गाइस इसमें आपको याद रखने की चीज ये है कि टू मैट्रिसेस कैन बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर, एंड व्हेन वी हैव टू इक्वेट टू मैट्रिसेस वी हैव टू इक्वेट द करस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट्स। जैसे इस पोजीशन एलिमेंट इस पोजीशन के साथ, इसको इसके साथ इक्वेट नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। इसको इसके साथ इक्वेट नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम वाले को उधर के फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम के साथ इक्वेट करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को इधर के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट के साथ इक्वेट करना है। दिस इज द वे यू इक्वेट टू मैट्रिसेस। सेकेंडली, अगर मैट्रिसेस को हमको ऐड करना है तो याद रखो मैट्रिसेस फॉलो दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। a प्लस b का रिजल्ट b प्लस a के साथ होता है। अगर दोनों मैट्रिसेस को हमने स्वैप कर दिया, स्वैप कर दिया, तो आंसर में कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। इन द सेम वे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। सर एसोसिएटिव क्या होता है? सिर्फ ग्रुपिंग चेंज हो गया, देख सकते हैं आप। a प्लस बी पहले ऐड होगा फिर उसको c ऐड होगा, और यहाँ पे a प्लस पहले b और c ऐड होगा फिर उसको a ऐड होगा।
the result is the same thing, तीनों ऐड है, it is just like okay 2 plus 3 है प्लस अगर हमने 7 कर दिया तो ये रिजल्ट सेम ही होगा ना, 2 प्लस ब्रैकेट 3 प्लस 7। देखो मैंने ग्रुपिंग चेंज कर दी है, इधर पहले 2 और 3 ऐड होगा 5 प्लस 7 which will be 12, इधर 7 और 3 ऐड होगा 10 प्लस 2 which is 12 again। ओके सो LHS RHS सेम ही आएगा। A plus O, what is this O? O is a null matrix or zero matrix। Guys, किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड किया गाइस तो आंसर वो A ही आएगा, आंसर शुड बी A itself। ओके मतलब जैसे 2 प्लस 0 क्या होता है 2, वैसे A प्लस 0 क्या होता है A होता है। जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स में कह रहा हूं इस केस में। ओके सो किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैंने इस मैट्रिक्स को 1 1 2 4 3 इसको ऐड कर लिया 0 0 0 0 के साथ, सो आंसर 1 2 4 3 आएगा क्योंकि 1 प्लस 0 2 प्लस 0 4 प्लस 0 3 प्लस 0, सो 1 2 4 3 यही रिजल्ट रहने वाला है। सो A प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस A, दैट इज इक्वल टू A। ओके दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। So some properties of matrix multiplication we'll discuss over here. Properties of matrix multiplication. Okay. So guys, एक बात याद रखो, मैट्रिक्स का एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव नहीं होता। सब्ट्रैक्शन की ऐसे अलग से प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन ओके मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है। मतलब A इंटू बी का रिजल्ट B इंटू ए के साथ मैच होगा ये जरूरी नहीं है। रिमेंबर दिस पॉइंट, AB एंड BA कोइंसिडेंटली ये इक्वल आ सकते हैं, ये कोइंसिडेंटली इक्वल आ सकते हैं, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। ओके इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। जैसे A इंटू बी को मल्टीप्लाई किया और B इंटू ए का रिजल्ट सेम आएगा, नॉट नेसेसरी। ओके तो फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, समझो 1 2 3 4 देख लो। ओके ये समझो A, इसका नाम A दे दिया मैंने। ओके और दूसरा मैट्रिक्स में उसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 1 1 2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो देखो आंसर क्या आएगा, ये B मैट्रिक्स है A इंटू बी। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम इफ यू डू दिस पर्टिकुलर थिंग हियर, first of first column if you multiply, okay first of first column, so it will be 1 into 2 2 plus 2 which is 4, first row second column करोगे तो 1 plus 4 which is 5, second row first column करोगे तो 6 plus 4 which is 10 and second row second column करोगे तो 3 plus 8 which is 11। so this is the answer of A into B। और अगर यही चीज आप B into A करोगे, अब B into A 2 1 1 2 1 2 3 4, if you multiply these things now, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में you can see 2 plus 3 which is 5, यहीं से पता चल जाता है कि B into A का रिजल्ट जो है वो A into B के साथ मैच नहीं होने वाला। ओके मैट्रिक्स कंप्लीट भी कर दिया तो आप लोग चेक कर सकते हो A into B का रिजल्ट जो है ये B लिया मैंने, B 2 1 1 2 into A 1 2 3 4। ओके सो A into B और B into A मैच नहीं होने वाला, दैट इज फॉर श्योर। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो हमेशा ऐसा A B है तो आप उसको BA से रिप्लेस करोगे किसी प्रूफ में तो ये अलाउड नहीं है। हाँ लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव जरूर होता है, मतलब विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस वी आर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द यू कैन से ऑपरेशंस। जैसे यहाँ पे देखो मैट्रिसेस का ऑर्डर देखो A B C, यहाँ भी A B C है, मैंने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं किया, सीक्वेंस चेंज नहीं किया। ओके मैंने सिर्फ पहले AB को मल्टीप्लाई किया और फिर राइट से C को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे B into C मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट से A को मल्टीप्लाई किया, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी सेम। इसको एसोसिएटिव कहते हैं। दिस थिंग कैन बी प्रूव्ड, टेक एनी टाइम एग्जांपल वेयर ABC का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके एंड यू कैन वेरीफाई दिस पर्टिकुलर थिंग। सो अभी वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे हम लोग, जो भी चीजें जरूरी है ये सारी चीजें आपकी 11th स्टैंडर्ड में कवर हो चुकी है। ओके इसके सम्स भी है, अभी हम लोग सम 11 के सम्स नहीं सॉल्व करते बैठेंगे, वी विल ओके एक्चुअली गेट स्टक इनटू दैट, हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं अभी फिलहाल। ओके नेक्स्ट यू कैन चेक इट आउट, A into I is equal to I into A is equal to A। So what is this sir? I मतलब क्या, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, A into I A ही रहेगा, I से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन चेक इट आउट, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, समझो मैंने एक मैट्रिक्स लिया जैसे ये 4 2 3 1, मैं जानबूझ के सिंपल मैट्रिक्स ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। ओके सो मल्टीप्लाई कर लोगे, सो गाइस यू कैन चेक इट आउट, आप पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे ना, सो 4 1 4 प्लस 2 into 0 is 0, सो 4 plus 0 ये 4 आने वाला है,
फर्स्ट और सेकंड कॉलम करोगे तो इट विल बी 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2 आने वाला है। सेकंड और फर्स्ट कॉलम करोगे 3 प्लस 0 वो 3 आने वाला है। सेकंड और सेकंड कॉलम करोगे तो 0 प्लस 1 वो 1 आने वाला है। 4 2 3 1 4 2 3 1 सेम ही रिजल्ट रहेगा, मतलब a into I आंसर a ही रहेगा। एंड उनको हम लोग कम्यूटेटिव यूज किया आपने, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ वो वर्क करता है सिर्फ। a into I is equal to I into a वो a ही रहेगा। ओके रिमेंबर दिस। ये जो प्रॉपर्टीज को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। a into bracket b plus c can be written as ab plus ac, ab plus ac. Remember this point guys. a into bracket b plus c is equal to ab plus ac. Got it? Okay. Whereas a into o मतलब जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर जीरो आएगा। जैसे किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते आंसर जीरो आता है, उसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग इस मैट्रिक्स को इस बार जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। जीरो मैट्रिक्स आने वाला है। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम ना, जीरो प्लस जीरो तो जीरो, फर्स्ट और सेकंड कॉलम भी जीरो। गेटिंग द पॉइंट? सो नल मैट्रिक्स आने वाला है। ओके उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों जीरो मैट्रिक्स है या दोनों में से कोई एक जीरो मैट्रिक्स होना जरूरी है। I repeat my point. Okay, product of two non-zero matrices can be zero. जैसे ये मैट्रिक्स देखो A और B, इसमें से कोई भी जीरो मैट्रिक्स है क्या, नल मैट्रिक्स है क्या? नहीं। फिर भी उनका प्रोडक्ट चेक करो। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ओके A इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 0 2 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 माइनस 1 के साथ। चेक करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू माइनस 1 0 तो 0 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 दैट इज 0 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम करोगे तो 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0। सो आंसर एक नल मैट्रिक्स आ गया। मतलब दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस है लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके और ये तो सिंपल सी चीज है। a स्क्वायर का मतलब मैट्रिसेस में अगर a इज अ मैट्रिक्स देन a का स्क्वायर मतलब a into a, तो a और a को मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर लिखा जाता है। a into a करोगे तो a क्यूब लिखा जाता है। ओके सो these are some of the important properties of matrix multiplication. So remarkable things is this is matrix multiplication is not commutative, it is associative. कम्यूटेटिव नहीं होता लेकिन एसोसिएटिव होता है। ओके और i के साथ मल्टीप्लाई करोगे a into i आंसर a आएगा, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे a into o दैट इज o आता है। ओके रिमेंबर दिस पॉइंट्स वेरी वेल। ओके नाउ नेक्स्ट we'll move on with some other properties. So some important properties about transpose of a matrix. मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ओके यू कैन से एग्जांपल्स है या सॉरी प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। सी द फर्स्ट वन A ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इज ओके इक्वल टू A, मतलब A जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दिया आपने 1 2 3 4। ट्रांसपोज करना मतलब क्या? ओके मैंने पहले लेक्चर में मैंने बताया था लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं 1 2 3 4। सो इसका ट्रांसपोज जो है वो होगा 1 2 3 4। क्या हो गया? रो बिकम्स कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, ऑब्वियसली कॉलम बिकम्स रो, कॉलम बिकम्स रो। ठीक है तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। अब इसका वापस ट्रांसपोज करना मतलब क्या? ए ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करना मतलब वापस इसको इंटरचेंज करना। वापस रो को 1 3 को कॉलम बनाओ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओ 2 4। सो 1 2 3 4 मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ गया। ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ओके उसके बाद a प्लस b ट्रांसपोज इज सेम एज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अलग अलग से ट्रांसपोज करके ऐड करो या ऐड करके ट्रांसपोज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टी लग रही है। a प्लस b पहले इधर ऐड कर दिया फिर ट्रांसपोज किया, और इधर पहले ट्रांसपोज कर लिया फिर ऐड कर दिया, इट रिजल्ट्स इन द सेम वैल्यू। ठीक है लेकिन सबसे जरूरी प्रॉपर्टी जो है ये है a इंटू b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज है। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करना इज नॉट सेम एज a रेज़ टू t इंटू b रेज़ टू t। इट्स रिवर्सल लॉ, उल्टा हो गया। देखो b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, प्लीज यहाँ पे ये मत लिखो a रेज़ टू t इंटू b रेज़ टू t, वो गलत हो जाएगा। रिवर्सल लॉ है ये, रिवर्स हो जाता है। ab becomes ba here, b रेज़ टू t a रेज़ टू t। रिमेंबर ओके यू कैन टेक एग्जांपल जिसमें ab मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और फिर ट्रांसपोज कर लो, यू विल चेक द रिजल्ट। ओके विल बी सेम LHS और RHS का। ओके यहाँ पे k into a मतलब पहले स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया
और फिर जो भी आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज कर लिया, इज सेम एज पहले ए का ट्रांसपोज कर लिया और फिर उसको के से मल्टीप्लाई किया, वन एंड द सेम थिंग। जैसे ओके इसका और इसका दोनों का एक एक एग्जांपल देख लेंगे। चलो ए बी का ट्रांसपोज समझो, मैंने ए मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, ए लिया इनटू बी लिया 2 -1 3 2, ठीक है। अब या फिर सारे पॉजिटिव ले लेंगे यहाँ पे, ओके सो ए इनटू बी, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अभी मैं ज्यादा इस पे टाइम नहीं वेस्ट करने वाला। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 + 6 which is 8, first row second column which is 4 + 4 which is 8 again, second row first column that is 6 + 12 which is 18, and second row second column that is 12 + 8 that is 20। सो आपका आंसर आएगा 8 8 18 20। ये हो गया ए बी, ये हो गया ए इंटू बी का रिजल्ट, जिसका हमको क्या करना है ट्रांसपोज। तो अभी इसका ट्रांसपोज करना है तो 8 8 रो बिकम्स कॉलम, 18 20 सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम। सो दैट इज द एलएचएस रिजल्ट। ए बी का ट्रांसपोज कर लिया। अब आरएचएस का रिजल्ट कंप्यूट कर लेंगे हम लोग। तो फॉर फाइंडिंग आरएचएस का रिजल्ट आप देख सकते हैं बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज कर लो, 2 4 रो बिकम्स कॉलम, 3 2 सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, ये है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज 1 2 रो बिकम्स कॉलम, 3 4 रो बिकम्स कॉलम, ये है ए ट्रांसपोज। चेक द आंसर नाउ हियर। ओके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 + 6 8 आ गया। ओके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नाउ पोजीशन देखो ना, ये कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ का रिजल्ट आने वाला है। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 + 12 which is 20, 6 + 12 which is 18, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ओके दैट इज 4 + 4 which is 8 again, and second row second column that is 12 + 8 which is 20। so 8 18 8 20, 8 18 8 20, LHS is equal to RHS, मतलब A into B का ट्रांसपोज is equal to B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरह से आप सेकंड प्रॉपर्टी एक्चुअली वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए k कोई भी स्केलर लिया, मैंने समझो 3 लिया इनटू 2 1 2 4 मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया k into a, गाइस k into a, और जो भी आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज करूंगा मैं अभी। इसका आंसर आएगा 6 3 6 12, 6 3 6 12, और इसका ट्रांसपोज हो गया ओके 6 6 कॉलम बिकम्स रो, 3 12 कॉलम बिकम्स रो। ओके अभी आरएचएस देखो, पहले ए का ट्रांसपोज कर लिया, ए का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज कर लिया। पहले ये के था, ये ए था, ए का ट्रांसपोज कर लिया 2 1 रो बिकम्स कॉलम, 2 4 के ये ए ट्रांसपोज कर लिया इनटू उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, के से मल्टीप्लाई करना मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना। आंसर क्या आएगा 6 मतलब ये, फिर 6 मतलब ये, 3 मतलब ये, और 3 4 12 मतलब ये। सो आंसर सेम आ गया। गॉट इट? ओके सो ये प्रॉपर्टी ट्रांसपोज के लिए है। Whereas, see the next one. If A is a symmetric matrix, A raised to T is same as A. जब A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मतलब क्या, Aij इक्वल टू Aji। जैसे मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा गाइस, देख लो यहाँ पे 1 2 3, ये 2 है तो यहाँ पे 2, ये 3 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 0 and 7। देखो तो ये एलिमेंट के साथ मैच होना चाहिए, ये वाला इसके साथ मैच होना चाहिए, और ये वाला इसके साथ मैच होना चाहिए। क्यों? A12 है, ये A21 है, ये A13 है 1 3, ये A31 है 3 1, ये A23 है, ये A32 है। ओके Aij इक्वल टू Aj है। अब गाइस इसका ट्रांसपोज भी कर लेंगे, ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज भी कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो A raised to T is equal to रो बिकम्स कॉलम 1 2 3 1 2 3, सेकंड रो 2 0 5 कॉलम, थर्ड रो 3 5 7, यहां थर्ड कॉलम बन जाएगा 3 5 7, एंड दिस मैट्रिक्स आर सेम, यू कैन चेक इट आउट, सेम ही तो है 1 2 3 1 2 3 2 0 5 2 0 5। ओके मतलब एंड 3 5 7 3 5 7। गॉट इट? सो A का ट्रांसपोज और A सेम ही है अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो। लेकिन अगर A स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A का ट्रांसपोज इसको -A। इसका क्या मतलब है, अगर एक स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता हूं मैं, देखो एक छोटा सा स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता हूं 2 क्रॉस 2 का, ये समझो 5 है या -5। गाइस अगर ये स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब इसका ट्रांसपोज मैंने अगर किया तो रो बिकम्स कॉलम, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। सो यहाँ का रो कॉलम बन गया और यहाँ का जो कॉलम था वो यहाँ पे रो बन गया। गेटिंग इट? और यू कैन चेक इट आउट गाइस, इन दोनों में फर्क सिर्फ ये माइनस साइन उधर चला गया, मतलब अगर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया इसमें से तो ये 0 0 तो वैसे ही रहेंगे, 5 में से माइनस बाहर ले तो 5, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे -5, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बिकम्स +5। ओके और ये आपका A मैट्रिक्स है 0 5 -5 0।
So a raised to t in that case is equal to minus a. Okay, next moving on with the next thing. Okay, A अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले सकते हो, 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, A और उसका ट्रांसपोज का एडिशन हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है और उनका सबट्रैक्शन हमेशा एक स्कीम सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। एक काम करेंगे हम लोग, एक 2x2 का एग्जांपल ले लेंगे। ओके, देखो ये होगा आपका A और ये होगा आपका A का ट्रांसपोज। चलो कर लो, A मैट्रिक्स लिया मैंने 2 3 4 -1, उसका ट्रांसपोज क्या होगा गाइस, 2 3, रो बिकम्स कॉलम, रो बिकम्स कॉलम, ऐड कर दो, क्या आंसर आएगा देख लो, 2 + 2 becomes 4, 3 + 4 becomes 7, 4 + 3 becomes 7, -1 + -1 becomes -2, -1 -1 -2 हो गया। सो गाइस ये aij और ये aji, a12 और a21 सेम आ गया, a12 और a21 सेम आ गया। ये तो कुछ भी हो सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि a11 किससे इक्वेट होगा, a11 से खुद के साथ। ओके, सो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया गाइस। ओके, Whereas, अगर इन्हीं को हम लोग सबट्रैक्ट करते थे, अगर यही चीज हम लोग सबट्रैक्ट करते थे एडिशन की जगह पे, तो स्कीम सिमेट्री आएगा। स्कीम सिमेट्री आपको याद होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। यहाँ पे चेक कर लो, 2 - 2 0 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, 3 - 4 -1 आ जाएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा, -1 माइनस मतलब -1 + 1 0 आ जाएगा। सो डायगोनल 0 और यहाँ पे aij = -aji, प्रॉपर्टी ये है। सो जो भी aij एलिमेंट है, तो ये a12 जो है वो होगा -a21। तो चेक कर सकते हो आप, a12 कितना है, -1 है, और -a21 कितना है, 1 है। सो आंसर LHS RHS सेम ही आ गया। ओके, तो ये स्कीम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। तो a + a raised to t is symmetric, a - a raised to t is scheme symmetric. So these are some of the properties of transpose. You can note them down. So let's revise the concept of minors and cofactors now. Guys, minors and cofactors कैसे फाइंड होता है? कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे 2x2 है, 3x3 है, उनके माइनर और कोफैक्टर जो है वो फाइंड होते हैं। अब कैसे फाइंड होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। ओके, सो माइनर फाइंड करना है आपको, तो हर एलिमेंट का माइनर आता है। जैसे अगर एक 2x2 का मैट्रिक्स लिया हमने गाइस, ओके, तो ये एलिमेंट के नाम होते हैं a11, a12, a21, a22। नाम ठीक से देखो, नाम अपने पोजीशन के हिसाब से दिए गए हैं। ये पहला वैल्यू इंडिकेट करता है रो और ये दूसरा वैल्यू इंडिकेट करता है कॉलम। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। गाइस, जब माइनर फाइंड करना है तो हर एक 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर्स होने वाले हैं, 4 माइनर्स। हर एक एलिमेंट का अपना खुद का माइनर होता है। माइनर कैसे फाइंड करना है हमको, जैसे a11 है गाइस, 1 है ना, तो आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करना है, जो भी बचता है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ऑब्वियसली एक सिंगल वैल्यू बचा है, उसका डिटरमिनेंट वो खुद वैल्यू होता है। ओके, सो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करके ये आंसर आ गया। उसी तरह से अगर ये इसका माइनर फाइंड करना है a21, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करना है, ये उसका माइनर बन गया a12। ओके, दिस इज द वे वी फाइंड द माइनर। 3x3 में डिटरमिनेंट कंप्यूट करना पड़ेगा, हम लोग एग्जांपल देख लेंगे। सो टू ऑब्टेन द माइनर व्हाट वी हैव टू डू इज एलिमिनेट द ith रो एंड jth कॉलम। अगर आपको mij चाहिए तो आपको ith रो और jth कॉलम डिलीट करना है, एलिमिनेट करना है, और जो भी बचता है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, दैट बिकम्स द माइनर। Whereas कोफैक्टर डिनोट करने के दो तरीके हैं, एक तो Cij और Aij, आपके बुक्स में Aij भी है। ओके, सो कोफैक्टर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम अगर फाइंड करना है आपको, तो क्या करना है गाइस, याद रखो, -1 raised to i plus j, -1 raised to i plus j into mij। मतलब aij एक तो सेम mij जैसा होगा या फिर उसका नेगेटिव होगा। aij जो है वो सेम एज mij होगा या फिर उसका नेगेटिव होगा। -1 raised to i plus j into mij। सो वैल्यू वाइज चेंज नहीं होगा, साइन वाइज चेंज हो सकता है। ओके, सो एक काम करेंगे, विद एग्जांपल्स विल लुक ऑन टू दिस। ये चीज अब याद रख लो, नोट डाउन कर सकते हो। विल सी अ एग्जांपल ऑफ 2x2 एंड अ 3x3 फॉर फाइंडिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। So we can look on to 2 examples of minors and cofactors. Okay, one is of order 2x2, one is of order 3x3. So guys, sir rectangular matrix का minor cofactor नहीं निकलता, rectangular matrix के लिए minor cofactor नहीं निकलता, square matrix के लिए निकलता है, वो हम लोग देखेंगे कैसे। So guys, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4।
सो माइनर्स भी 4 होंगे। तो सबसे पहले मैं माइनर्स आपको बताता हूं कैसे कंप्यूट करने हैं। सो पहला माइनर है M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए, फिर उसके बाजू वाला है M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए, फिर है M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए, और फिर है M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए। तो इसमें 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर्स आने वाले हैं। कॉमन सेंस से पोजीशन के हिसाब से देख लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके, सो अभी M11 निकालना है आपको, तो वो हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं देख लो। M11 निकालना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, क्या बचता है 7, दैट इज M11। ओके, फिर M12 निकालना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, ये पहला रो इंडिकेट करता है, दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, क्या बचता है -4। ओके, फिर M21 निकालना है आपको, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करो, दैट इज 2, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, सेकंड रो और सेकंड कॉलम हाइड करो, दैट इज 3। दिस इज द वे यू फाइंड माइनर्स। अब रही बात कोफैक्टर्स की, कोफैक्टर्स कंप्यूट करने आपको गए, सो कोफैक्टर निकालने हैं तो ऐसे ही 4 कोफैक्टर होंगे, नाम देख लो आप, A11, A12, A21, A22। गाइस तो कोफैक्टर का वैल्यू सब सेम होगा या कैसे? कोफैक्टर का वैल्यू जो है वो माइनर जैसा होता है या साइन चेंज होता है, तो वो कैसे डिपेंड करता है मैं आपको बताता हूं। कोफैक्टर का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, aij is equal to -1/i plus j into mij। सो कॉमन सेंस यूज करो, अगर a11 निकालना है 11 तो i भी 1 है और j भी 1 है, सो i भी 1 है और j भी 1 है, सो -1 की पावर होगी i plus j मतलब 1 plus 1 into m11, i और j 1 1 है, सो -1 का स्क्वायर हो गया ना गाइस ये, और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, मतलब 1 into m11 मतलब m11। सो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, a1 का वैल्यू सेम एज m11 आएगा which is 7, a11 का वैल्यू सेम m11 जैसे आएगा which is equal to 7। whereas अगर मुझको यहाँ पे a12 कंप्यूट करना है गाइस, तो फॉर्मूला विल बी -1/1 plus 2 1 plus 2 into m12 तो -1 का क्यूब, और -1 का क्यूब होता है -1 into m12 का रिजल्ट है -4, सो आंसर आ गया 4। सो आप एक चीज चेक कर सकते हैं, आंसर इसका 4 आ गया, साइन चेंज हो गया। अब एक सिंपल सी चीज बताता हूं जो याद रखो आप। ओके, अगर ये बेस जो है, बेस नंबर्स 1 और 1 उनका टोटल चेक करना है, अगर वो टोटल इवन है तो आंसर कोफैक्टर का सेम रखना है माइनर जैसे। देखो जैसे 1 + 1 2 इवन है तो कोफैक्टर का आंसर माइनर जैसा। लेकिन अगर बेस का टोटल ऑड है, 1 + 2 कितना होता है 3, मतलब ऑड टोटल है, तो चेंज द साइन चेंज कर लो, -4 becomes 4। कॉमन सेंस ना, -1 की पावर है i plus j, सो i और j ऐड करोगे तो -1 की पावर बन जाएगी 1 + 2 3 और -1/3 मतलब -1 into -1 आंसर आएगा। ओके, सो साइन चेंज हो जाएगा माइनर का इन दैट पर्टिकुलर केस। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 + 1 कितना है 3, ऑड है, बेस का टोटल ऑड है, ये नंबर इवन ऑड है ये नहीं देखना है, बेस का टोटल लिखना है। यहाँ पे बेस 2 और 1 मतलब i2 है और j1 है, सो i2 होगा और j1 होगा। ओके, सो ये 3 बन जाएगा और -1 का क्यूब होता है -1, सो माइनर की साइन चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे 2 + 2 मतलब कितना 4, इवन है तो सेम रहेगा, क्योंकि 2 + 2 मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, -1 का रेज़ टू 4 मतलब 1 हो जाएगा, 1 into m22 दैट इज m22, result same as m22। so this is the way you compute the minor and cofactors of a 2/2 you can say matrix। whereas moving on further for finding the minors and cofactors of 3/3 matrix, मैं आपको minor cofactor बताऊंगा 3/3 के लिए। यहां पे आप देख सकते हैं, पहले minor बता दूंगा m11। गाइस पहले तो मैं थोड़ा सा एक्सपांडेडली करूंगा लेंदी वे में। ओके, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली माइनर का वैल्यू लिख सकते हैं। गाइस ये देखो m11 क्या मतलब है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हाइड करो, जो बचता है उसका डिटरमिनेंट निकालो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हाइड करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, और जो बचता है क्या बचा देखो 2 6 2 1 लिख दो, 2 6 2 1 और उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, सो उसका डिटरमिनेंट कितना आएगा गाइस। ओके, डिटरमिनेंट निकालना आता है, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट तो आना चाहिए। ओके, 2/2 का डिटरमिनेंट निकालना है तो ये ऐसा 2 1 are 2 2 - 12, सो दिस इज 2 - 12, 2 - 12 इज -10। ओके, अभी m12 कितने माइनर आने वाले हैं 9, क्योंकि इसमें 9 एलिमेंट है ना पोजीशन के हिसाब से, m11 m12 m13 m21 m22 m23 m31 m32 और m33।
गेटिंग इट? ओके, सो M12 निकालना है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करना है इस बार, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया, क्या बचा 3611, सो बचा 3611, सो व्हाट शुड बी द आंसर 3 minus 6, सो 3 minus 6 is -3, 3 minus 6 is -3। तो फिर M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड करो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो, क्या बचता है 3212, 3212 और इसका डिटरमिनेंट निकलो 6 minus 2 which is 4, 6 minus 2, 6 minus 2 which is 4, M13। अभी एक काम करता हूं, बाकी के एलिमेंट में लिख देता हूं M21, M22, M23, M31, M32 और M33, आप वेरीफाई कर सकते हैं ये। ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो हाइड करो और फर्स्ट कॉलम हाइड करो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो आएगा 1 minus 10 which is -9, 1 minus 10। सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करो मतलब ये प्लस, सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करो क्या आ जाएगा 2 minus 5 which is -3। सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड करो, सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड कर लिया, सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड कर लिया 4 minus 1 which is 3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करो, डिटरमिनेंट निकाल लो 6 minus 10 which is -4। थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, थर्ड रो और सेकंड कॉलम हाइड करो, क्या बचेगा ओके 12 minus 15 -3 और लास्टली थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड कर लो, थर्ड रो और थर्ड कॉलम हाइड कर लो 4 minus 3 which is 1। ये हो गए माइनर। अभी कोफैक्टर में फॉर्मूला वही रहेगा कोफैक्टर निकालने का, भले वो 3/3 है, कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा। तो C11, C12, C13, आई एम सॉरी ए भी कर सकते हैं आप, पहले केस में ये यूज कर लिया तो ए ही यूज करेंगे अभी। A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, सो आप देख सकते हैं A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं वो चीज याद रखो, एक सिंपल टेक्निक बताता हूं 3/3 के लिए। गाइस, कोफैक्टर का वैल्यू जो है वो अल्टरनेटली चेंज होता है, मतलब पहला वैल्यू सेम रहेगा, सेकंड चेंज द साइन, थर्ड सेम, फोर्थ चेंज द साइन, फिफ्थ सेम, सिक्स्थ चेंज द साइन। सर मतलब क्या है A11 -10 सेम, देन चेंज द साइन, -3 becomes 3 A12 के लिए। ओके, ऐसा क्यों? 1 + 2 ऑड है, ऑड है तो -1 का ऑड पावर, -1 का ऑड पावर -1 चेंज द साइन। ओके, अभी 1 3 सेम, 2 1 चेंज द साइन, सो 2 1 के लिए चेंज द साइन, सेम चेंज द साइन, सेम चेंज द साइन, सेम। दीज आर द कोफैक्टर्स। आप चेक कर सकते हैं, फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया दिया था, वापस एक बार लिख रहा हूं यहाँ पे। aij का फॉर्मूला होता है -1 j into mij, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, उसके हिसाब से हम लोग ने ये कंप्यूट कर लिया। यहाँ पे स्टार्टिंग में सेम चेंज, और चेंज मतलब वैल्यू चेंज हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। So I hope you have understood these guys. Minors of 2/2 matrix, minors of 3/3 matrix, very important. Next year, just 12th standard के पोर्शन में हमको माइनर कोफैक्टर यूज करके मैट्रिसेस के इनवर्स वगैरह कंप्यूट करने हैं, तो तब ये चीजें सारी हमको लगने वाली है। So I'll stop here with the revision of 11th standard, and from the next lecture we will begin with the portion for 12th standard. Thank you very much.